Hello, friends, my dear brothers and sisters. Greetings and blessings to you in the name of our Lord Jesus Christ. I am unable to sleep today. It's been going on for several days. So I was just led to record something. Now you all know that we come from a Punjabi Sikh family, and from Delhi, and we never we are not born Christians, but something happened in our lives. I just want to share briefly what had happened when I was very young. When I was 7 8 years old, I was told by my parents about religiously, these things were inculcated into me to go to the holy house of God every morning and do the seva there and have respect for the religions, meditate on the scriptures. And but in spite of that, there were some issues which were always going on in the home. And when I was 8, I would start crying all of a sudden, and I would ask my parents that what would happen when we die. And they would say that beta ye umar nahi hai, this is not the age to ask such question. I said, no, I want to know that what's going to happen when we die, why God created us, what is eternity, how am I going to spend my time in eternity, what will I do in eternity. I don't know, I want answers. Then they would all say, oh, this is a kid and it'll just go away with time. And finally the time passed. I came in 10th class in New Era Public School in Delhi, Mayapuri. And there in our annual function, Talkotara Stadium, the vice principal gave me an award uh, for which I was quite surprised. That was the award for the best behavior. And that was a book by Norman Vincent Peale. And while I was reading that book, I'm just trying to omit certain details. So when I was reading that book, there were 4 or 5 pages devoted to God, in which it was written that Norman Vincent Peale, whenever he wants to take guidance and direction, he sits at the feet of the God, he talks to God, and God answers his prayers, and that is how he's able to avoid so many mistakes. And this is something of that sort he had written. Now, this was very unusual for me because these were new teachings. I mean, no one has told us that you can talk to God. Once I'd asked my spiritual guru that he's also in Rajori Garden. I asked my spiritual guru that I want to talk to God like you say that you talk to God. I mean, he would say that in the midnight hour he would connect with his gurus and God in the other world, और उनकी बड़ी बातें होती हैं. एंड ही सेड, हाँ आसान, फॉरगेट इट, इस बर्थ में तो तुम नहीं कर सकते, खुदा से बात आप नहीं कर सकते. मैं चुप कर गया जी. मैंने कहा कोई बात नहीं. कहते वो पीपल का पेड़ है ना, उसके पत्ते जब सारे झड़ जाएंगे ना, उतने जन्म लेके भी परमेश्वर तुम्हें मिल गया अपने आप को, गनीमत तो गनीमत समझना, फॉर्चुनेट समझना. ओके. तो क्या होता था जी, घर में जब भी कोई दुख परेशानी आनी, कुछ ना कुछ लगा रहता था. कोई हमारे साथ रहते थे, वो बहुत ब्लैक मैजिक करते थे. अब आप लोग कुछ बिलीव करते हैं नहीं करते, बट दीज थिंग्स आर देयर. कभी बैठे बैठाए एक्सीडेंट्स हो जाने, कभी मतलब बीमार पड़ जाना, कभी पैसे गुम हो जाना, कभी चीज़ें चोरी हो जाना अपने आप ही. एंड वो चीज़ें एक पैटर्न बन गई थी. And I used to sleep up floors at my night, upstairs, and I would see dark shadows, and they would come and strangulate my neck. अब मेरा गला जैसे कोई घोट रहा है, और फिर मैं एकदम डर के उठता था. फिर मैं क्या करता था, मैं अगले दिन जाता था, मैं सारे गुरुओं और बाबा जी और भगवानों की फ़ोटो ला के मैं रात को धूप बत्ती करता था, मतलब, और साथ में अपना होली स्क्रिप्चर्स टेप रिकॉर्डर पे लगाता था. एंड बट नथिंग यूज्ड टू वर्क, नथिंग यूज्ड टू वर्क. सो वेल, लाइफ वाज गोइंग ऑन फाइन. एंड वी वेंट टू द कॉलेज ऑल्सो. ऐसी बात नहीं है कि हमेशा हम बीमार ही रहते थे. लाइफ वाज गोइंग ऑन फाइन.
एंड उसके बाद फिर मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई नाइजीरिया में ऑन डेपुटेशन फॉर ही इज़ अ मैथ्स टीचर रिटायर्ड नाउ फॉर 5 years विल लिव फॉर 81 to 85 विल लिव देयर। उसके बाद आके ना रजौरी गार्डन में अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सो मेरी सिस्टर इतनी बीमार रहने लग गई थी एंड सो हमारे एक बाबा जी थे, अब उनको बाबा जी बना दिया था जी। वो बड़े स्पिरिचुअल थे, उनको हर होली बुक की नॉलेज थी, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब, हर बुक की उनको नॉलेज थी। तो उनको हमारी हालत देख के थोड़ी पिटी आती थी और जब भी कुछ होता था वो हमें कुछ सॉल्यूशन बताते थे और हम ठीक हो जाते थे टेम्परेरीली। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा बाबा जी आप माइंड मत करना, बट बाबा जी ना मेरे साथ स्कूटर पे जाते थे। आई यूज़ टू पिक हिम अप एंड ड्रॉप हिम। आई हैड अ बजाज स्कूटर एट दैट टाइम। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा बाबा जी आज आप हैं, यू आर 74 75 प्लस, मैंने कहा हम आपको बुला लेते हैं राइट, कल को जब आप नहीं रहेंगे व्हाट विल वी डू, whom विल वी टर्न टू। तो वो हंस पड़े, कहते नहीं बेटे ऐसे नहीं बोलते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसे नहीं बोलते। फिर मैंने उनको एक सवाल और पूछा, मैंने कहा बाबा जी जब भी कोई डिस्टर्बेंस आती है, जब भी घर में लाल धागे आते हैं, पैसे गायब हो जाते हैं, कोई बीमार सिस्टर बीमार पड़ जाती है, ये कुछ आ जाता है, बट सो आप प्रेयर करते हो और थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो जाता है। पर वो थोड़ी देर के लिए क्यों ठीक होता है? वाई इज़ देयर नॉट अ परमानेंट डिलीवरेंस? ये सर जी ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। कहते कहते मैं तो सिर्फ उन चीज़ों को ना अपनी पावर्स के साथ ना कुछ दूर तक कर सकता हूँ ताकि वो आपको टच ना करें। ऑलराइट फाइन। सो बाबा जी ने कहा था कि इस घर के आसपास मैंने एंजल्स या जिन्स में आपकी रक्षा के लिए किए हैं, तो आप ऐसे ऐसे वेल तो फास्ट फॉरवर्ड मेरी सिस्टर कॉलेज में चली गई दिल्ली में, और वो सडनली काफ़ी बीमार होनी शुरू हो गई, उसकी स्किन सैग होनी शुरू हो गई। वो 21 इयर्स की ऑलमोस्ट ओल्ड लेडी बन गई, आंखें काली काली हो गई, सारी उसकी ब्यूटी ख़त्म हो गई थी एंड शी स्टार्टेड हैविंग हेलुसिनेशंस एंड नथिंग वाज वर्किंग। एंड बाबा जी was very fond of my sister and he would say नथिंग वॉज वर्किंग। फिर एक दिन बाबा जी ने कहा कि मैं आज रात को ना ध्यान लगा के पूछूंगा। बाबा जी ने हमको कहा था कि वो रात को अपने गुरुओं से ध्यान लगा के पूछते हैं। दोज गुरुज हु हैव डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ही सेज आई हैव स्पिरिचुअल कन्वर्सेशंस थ्रू मीडियम्स, यू नो। सो अगले दिन आए, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये तो किसी ने मौत की आत्मा भेजी है, और उस मौत की आत्मा ने मुझे बोला है कि बाबा जी इस बार आप हट जाओ, इस फैमिली को मत बचाना, नहीं तो मैं आपको भी ले जाऊंगी। सो उस दिन के बाद बाबा जी पीछे हट गए। बाबा जी ने ये ज़रूर बता दिया था अपनी पावर्स के कि भाई मेरी सिस्टर को एक स्वेटर गिफ्ट किया गया, हैंड वूवन स्वेटर पर्पल कलर का, जिसके ऊपर मसानों की राख फेंकी गई थी, जो कि आधी रात को बैठ के कब्रिस्तान में काला इलम होता है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। सो उन्होंने कहा कि भई आप पाठ पूजा करो, चद्दर चढ़ाओ और अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ो, व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू, एंड से दैट शुड बी इनफ। बट उस दिन के बाद उन्होंने हमारे फ़ोन अटेंड करने बंद कर दिए। सो एक दिन मेरी सिस्टर ने कहा कि कोई मुझे लेने आ रहा है। वो 4 बजे एकदम चीख मार के उठी। उसने कहा कि काली छाया आ रही है। हमने कहा इसको फिर से हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई हैं। उसने कहा कोई काली छाया आ रही है, और उसके बाद मम्मी ने उसको गोदी में लिया, प्यार किया, सहलाया ना। कौन सी माँ ऐसे देख सकती है अपनी बिटिया को? सो बट वो आधी उठी और उसने ज़ोर से चीख मारी एंड शी जस्ट कोलैप्स्ड कि मुझे बचाओ। पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं, उनको बुलाया, वो उसके पैरों पे रब करने लग गए, गर्म पानी मंगाया, डॉक्टर साहब की वाइफ आई, उसकी आंखों पे सब कुछ करने लग गए, बट कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। हार के उन्होंने उसकी आंखों के ऊपर ऐसे हल्का सा हाथ रख के भी बैठ गए, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। ही वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग एंड माई मदर वॉज क्राइंग एंड वेलिंग। तो उस टाइम आप देखिए क्या होता है, उस टाइम गॉड का प्लान कैसे शुरू होता है। अब पता लगा गॉड का प्लान है, उस टाइम तो पता भी नहीं था। तो उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए क्या करूं।
आई वेंट टू द अदर रूम, ड्राइंग रूम में ऐसे-ऐसे गुस्से में मैं पेस करने लग गया। आज तक तो जी ख़्याल आया नहीं था, है ना? उस टाइम कैसे ख़्याल आ गया और अब मैं कर क्या सकता हूँ? अब तो सब कुछ हो गया। फिर मुझे याद आया कि मेरी जब जॉब की स्ट्रगल्स चल रही थी, तो मैंने अपनी पढ़ाई के बाद, जॉब्स के बाद, 1-2 जॉब्स के बाद दिल्ली में घर के पास कोई मार्केटिंग एयरलाइंस मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन का डिप्लोमा जॉइन किया था, फ्लाइंग एंजल्स इंस्टीट्यूट, जो मोदी लुफ्ट वालों ने स्टार्ट किया था। वहाँ पे एक दिन हमारी जब क्लास लगी थी, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए थे, मिस्टर विंसेंट, उनसे हमारी इंट्रोडक्शन हुई थी। एंड वन थिंग व्हिच एच्ड इन माय माइंड वाज़ दैट उन्होंने कहा मिस्टर विंसेंट के बारे में एक ख़ास बात है कि ये जीसस को मानते हैं और ये जब प्रेयर करते हैं तो जनरली इनकी प्रेयर सुनी जाती है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट वाज़ आवर ओनली इंट्रोडक्शन। अब मैंने कहा यार इतने साल हो गए हैं, है ना? मैं कहा दिस वाज़ इन 94 95, मैं कहा नाउ इट्स 98, तो कहाँ से वो, मेरे पास कोई नंबर नहीं है। फिर मैंने अलमीरा खोली, सबसे नीचे जो बुक्स का ढेर पड़ा होता है, और धीरे-धीरे टॉर्च के साथ देखना शुरू किया। एक नील गगन का पैड आया सामने। मैंने कहा ये तो मेरा क्लास का पैड है, और उसको मैं धीरे-धीरे देखने लग गया। देयर वाज़ अ नंबर व्हिच वाज़ रिटन इन ज़िगज़ैग वे। आई वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डूडलिंग आल्सो, स्टार्टिंग फ्रॉम 22 और 222। वो रेलवे कॉलोनी में रहते थे, उनकी वाइफ़ वहाँ नर्स थी। अब वो वहाँ नहीं रहते। सो मैंने उनका नंबर बुलाया। आई स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग, आई सेड सॉरी सर, आपको मैं फ़ोन ऐसे कर रहा हूँ, आई थिंक यू आर मिस्टर विंसेंट, एंड मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, बट उनको याद नहीं था। उन्होंने कहा नो टेल मी व्हाट डू यू वांट, क्या हो गया, मतलब कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? मैंने उनको फटाफट बताया जी ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर के साथ हुआ है, हमारे गुरु ने ऐसे कहा है, उस पे मसानों की राख फेंकी गई है एंड शी इज़ नो मोर, डॉक्टर बैठे हैं, बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोल रहा, शी इज़ लाइफलेस। सो उन्होंने फिर प्रेयर की, हल्की सी प्रेयर की थी। आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज़। फिर उन्होंने कहा जाके अपनी सिस्टर को टच करो, एंड प्रेज़ गॉड, उन्होंने कहा टेस्ट करो। जैसे ही मैं गया, उसने अपनी आँखें ऐसे झटके से खोल दी। मैं भागा-भागा आया, मैंने कहा सर उसने तो अपनी आँखें खोल दी हैं। मिस्टर विंसेंट ने मुझे कहा देखो, आपके गुरु ने क्या बोला था, स्पिरिचुअल गुरु ने, कि ये जो ब्लैक मैजिक है इसका कोई तोड़ नहीं है, सबसे गंदा काला इलम है ना, जिस पे मसानों की राख फेंकी जाती है। बट कहते हैं कोई ऐसा ब्लैक मैजिक नहीं है जिसका जीसस या सतगुरु यीशु के पास तोड़ नहीं है। ही सेज बिकॉज जीसस हैज़ गिवन, बीन गिवन द अथॉरिटी over all the all over everything, over the heavens and the earth। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा आपके घर में कोई बाइबल है बेटे? फिर मुझे याद आ गया जी, ये बात 98 की थी। मैंने कहा 94 में, मैंने कहा 92 में, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्टडीज़ कॉलेज में था, सेकेंड ईयर, तो वी हैड गॉन टू टेक पार्ट इन कल्चरल फेस्टिवल इन आईआईटी, इट वाज कॉल्ड रॉन्डेवू। तो वहाँ से वेस्टर्न कंपटीशन वगैरह में जब हम पार्ट लेके वापस आ रहे थे, तो हमने कुछ लड़कियां देखी, दे वर क्वाइट ब्यूटीफुल बट ड्रेस्ड इन ऑल वाइट, दे वर लुकिंग वेरी एंजेलिक। सो वी स्टॉप टू हैव अ चैट विद देम, एंड दे आस्क्ड अस आप कौन सी रिलीजन को बिलोंग करते हैं? मैंने कहा जी मैं सिख हूँ। मेरा दोस्त कहता मैं हिंदू हूँ। उसके थोड़ी देर बाद कहती कि ऑलराइट, गुड गुड, सो कैन वी प्रे फॉर यू? दे सेड कैन वी प्रे फॉर you? I said yeah, we are taught to respect all religions, I mean I wouldn't mind you praying for me। सो उन्होंने फिर हमारे लिए दुआ की। हमने एक चेन, हैंड चेन, हाथ पकड़ के चेन बनाई। उन्होंने कुछ कहा, आप हमारे पीछे बोलिए। अब मुझे पता है क्या उन्होंने बुलवाया, बट उस टाइम नहीं पता था। पर फेथ था कि भाई कोई खुदा का बंदा आपके लिए दुआ कर रहा है, तो वो सिर्फ आपको रिपीट करने को बोल रहा है। वी रिपीटेड, एंड देन दे गेव अस, वो कहते हैं ये न्यू टेस्टामेंट है। उस टाइम पता नहीं था ये बाइबल है, राइट? तो हम उसको लेके अपने घर में रजौरी गार्डन में आ गए। थोड़े टाइम बाद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, रजौरी गार्डन वाला जॉइंट प्रॉपर्टी बिक गई। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, वो बाइबल को लेके मैं घर में आके बड़ा एक्साइटेड था। मैंने कहा आज कुछ मुझे फॉरेनर्स ने बाइबल दी थी और कहते थे हमारी होली बुक है। हमने खोल के देखी तो मैंने कहा दिस डजंट सीम टू बी लाइक होली बुक टू मी। I see the chapters just as written in a novel, Mark, Matthew, Luke, John, Romans, Corinthians, Acts. And then I tried to read the book. It was in King James Version. Thee, thou, that's, whither, whitst. ये अपने बस की बात नहीं है। 2-3 बार और ट्राई की, हमने कहा इसको रद्दी में दे देंगे। सर चांस की बात है कि जब जब रद्दी वाला न्यूज़पेपर वाला आता था,
तब सब सामान मिल जाता था, बाइबल नहीं मिलती थी, बाइबल नहीं मिलती थी। फिर कब हमारा घर बिक गया और कब हम यहाँ चले गए और बाइबल कैसे आ गई। सो 93 में शायद 92 में शायद घर बिका था हमारा। तो जब 98 की सुबह को जब मिस्टर विंसेंट मेरे से पूछते हैं प्रेयर के बाद कि बेटे घर में कोई बाइबल है, तो मैंने कहा जी हमारे घर में तो पाठ होता है, तो मतलब गुटके वगैरह होंगे, बाइबल का क्या काम है सर। सडनली आई रिमेंबर्ड दैट सीन। ऐसे हुआ था, मुझे किसी ने, मैंने कहा सर मुझे किसी ने एक बुक दी थी, किसी प्रभु के लोगों ने। उन्होंने कहा जाओ लेके आओ। अब कहाँ से लेके आओ, कभी देखी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, बट गॉड गॉड का प्लान देखिए, वो भी नज़र आ गई। घर पे इंसाइक्लोपीडिया के सेट के ऊपर बड़ी डस्ट खा रही थी। मैं उसके पास लाया, मैंने कहा ये गिडियंस की न्यू टेस्टामेंट लिखा हुआ है, बट ये बाइबल नहीं है। कहते नहीं नहीं बाइबल इसी को कहते हैं, इट्स पार्ट ऑफ बाइबल। एंड देन ही टोल्ड मी दैट गो टू योर सिस्टर, गिव हर टाइम टू हील। उसके साथ उसके नीज पे बैठी, आई मीन घुटने टेक के उसके सरहाने बैठिए, और कुछ मैं स्क्रिप्चर्स आपको बता रहा हूँ, साम 35, 23, साम 91 एंड अदर साम्स, आप बड़े कहते विश्वास के साथ पढ़ना। मैंने वही किया। एक दो दिन बाद मिस्टर विंसेंट जी ने हालचाल पूछा। मैंने कहा शी इज़ स्लाइटली बेटर। कहते मैंने आपको बोला था वो एकदम से ठीक नहीं होगी, एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड जेंटल विद हर। सो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी फ्राइडे को हमारे यहाँ पे या सैटरडे को हमारे यहाँ पे सत्संग होता है, प्रेयर मीटिंग होती है। सो कहते यू नो जीसस टेल्स अस टू थैंक फॉर एवरीथिंग। सो क्या आप आगे थैंक्स करना चाहेंगे जो प्रभु ने आपकी सिस्टर के लिए की है। यू नो मेरा भी स्टमक ख़राब रहता था, आई वॉज ऑन लिक्विड डाइट फॉर सो मैनी मंथ्स। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये दूध भी लिक्विड पानी डाल के पीता है। मेरे अपने कज़न ने मेरा मजाक उड़ाया था। एंड जब मैं लोगों को देखता था चाय समोसा खा रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टमक के साथ लगा रहता था, और वो चीज़ कब हील हो गई जीसस में आ गए पता भी नहीं लगा, पता भी नहीं लगा कब कब हील हो गई। सो हम उनके घर गए, हमने प्रेयर मीटिंग हो रही थी, एंड हमने सोचा यार यहाँ तो तालियां मारी जा रही हैं, पीपल आर नॉट दैट क्वाइट। हमने कहा यार वो गुरुद्वारों में और दूसरे तीर्थ स्थानों में लोग कितने शांति से बैठे होते हैं, और यहाँ कोई पोइट्री वोइट्री नहीं है ऐसी स्क्रिप्चर्स की। बट वहाँ पे एक चीज़ हमको मूव कर गई, जो हमको जानते नहीं थे, जो हमको पहचानते नहीं थे, वो हमारे लिए रो रो के दुआ कर रहे थे। वो हमारे लिए घुटने पे बैठ के हम हमारी सिस्टर के लिए, पापा के लिए, हमारी फैमिली के लिए कुछ लोग दुआ कर रहे थे, एंड दैट टच्ड माय डैड्स हार्ट, दैट टच्ड आवर हार्ट्स। तो हम सोच के गए थे कि हम एक बार थैंक्स कर देंगे अपनी तरफ से, और दोबारा हम कभी जाएंगे नहीं। बट नो, उनका जो आचरण था, उनका जो बिहेवियर था, है ना, उनका जो प्रेम था, वो हमको खींच के दोबारा लेके गया। एंड देन अगेन एंड देन अगेन, देन अगेन एंड दैट फॉलोड। धीरे धीरे कनेक्शंस बनने स्टार्ट हो गए, और हम प्रभु यीशु में बढ़ने शुरू हो गए। तब हमें पता लगा कि जीसस इज़ गॉड इनकारनेट इनटू फ्लेश। He came to earth to save the mankind from their sins, because without the shedding of blood there can be no forgiveness of sins। पहले इज़राइट्स के लोग जो थे लहू से और ऐसे बट अपने पाप माफ़ करवाते थे बैलों के बछड़ों से, लहू से। दैट वाज नॉट इनफ, यू नो। सो देयर हैड टू बी अ परफेक्ट सेक्रीफाइस। तो यीशु जी खुद आए धरती पे, उन्होंने अपने शरीर को बलिदान दिया, क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए टूम में, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठे। एंड नाउ दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज ए लिविंग गॉड, एंड हिज वर्ड सेज इन द बाइबल दैट ही इज़ गोइंग टू कम बैक वेरी सून टू टेक हिज पीपल विद हिम एंड टू जज द नेशंस। सो दैट इज़ आवर ओनली होप। और बाइबल ये बताती है, और मेरी सवाल का भी जवाब मिल गया कि मरने के बाद क्या होगा, इटर्निटी में हम क्या करेंगे। जब मैंने बाइबल का अध्ययन करना स्टार्ट किया, अपने पास्टर से, अपने एल्डर से पूछा कि भाई बाइबल बताती है कि देयर इज़ ओनली वन बर्थ, आफ्टर दैट देर इज़ ओनली जजमेंट, देर आर नो सेवरल बर्थ। तो जो दूसरे बर्थ्स है ना, दोज आर ऑल डिसेप्शंस गिवन बाय द एनिमी। So once you die, if you believe in Christ, your sins are forgiven. If you walk in a righteous way, if you follow the commands of Christ, if you are able to overcome sin, fine. You will spend time with Christ.
दैट इज़ द गॉड्स वे ऑफ मोक्ष. व्हाट इज़ मैन्स वे ऑफ मोक्ष? आदमी का है कि अच्छे काम करना, ठीक, अच्छे काम करने बहुत ज़रूरी है. सेवा करना, सेवा करनी भी ज़रूरी है. तीर्थ यात्रा करो, है ना, और रिवर्स वगैरह में, सरोवर्स में आप नहाओ मोक्ष प्राप्त करने के लिए. बट so these are all efforts of men trying to reach God through their works, but God left his throne in the heaven and came down on earth to man that, son, daughter, I love you so much. I'm gonna give my body as a sacrifice for your sins, entire mankind's sins, once and for all. So those who believe in the sacrifice of Jesus, they just have to speak from their mouth and confess and accept and seek forgiveness for their sins, and that's it. Whatever sins they might have committed in the past, they're all forgiven, and God says कि मैं तुम्हारे sins को याद भी नहीं रखूंगा कभी. नेवर, नेवर. और जब हम यीशु हमारे दिल में आते हैं, उनकी सामर्थ हमारे दिल में आती है, तो हमारे अंदर का जो आत्मिक अंधियारा है वो दूर होने लगता है, और फिर परमेश्वर से एक रिश्ता हमारा बनने लगता है. एंड देन हमारे हृदय की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है. रिश्ता परमेश्वर से तभी बनेगा जब हमारे पाप माफ़ हो जाते हैं. और यीशु अपनी वाणी में कहते हैं, आई हैव द अथॉरिटी टू फॉरगिव सिंस, टू फॉरगिव सिंस. कई स्टोरीज, हीलिंग स्टोरीज में हम पढ़ते हैं, सन्स योर सिंस आर फॉरगिवन, तेरे पाप माफ़ हुए. अब और कहीं तो हम ऐसे पढ़ते नहीं ना, वो कहते हैं जी परमेश्वर पाप माफ़ करता है. पर ये यीशु जी कहते हैं कि मैं और फादर परमेश्वर एक ही हैं, वी आर वन. डोंट थिंक दैट, ऑल्दो बाइबल में लिखा है कि जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड, बट जीसस एंड द फादर एंड वन. सो वी स्टार्टेड फॉलोइंग क्राइस्ट. हमारी लाइफ में अब जो धागे आते थे और हमारे पैसे घूमने बंद हो गए, धीरे धीरे मेरा स्टमक हील हो गया, और जिन चीज़ों को देख के हम डर जाते थे, अब हम जीसस के नाम में लाल धागों को उठाते थे, उनको फेंक देते थे. वाई? Because there is power in the name of Jesus. He has defeated Satan on the cross. He has defeated the enemies on the cross, my friend. Today the same power, the same authority is available for you also. आपके लिए भी आज वही अथॉरिटी अवेलेबल है. यू ओनली नीड टू बिलीव एंड रिमेंबर, ही दैट इज़ इन यू, द होली स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट. व्हेन यू कन्फेस दैट जीसस इज योर सेवियर एंड ही डाइड फॉर योर सिंस एंड यू आस्क फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, that when Jesus comes into your heart, then all the authority of Christ comes to you, and then you can engage with the enemy. You can just pray for others, and you will see a difference in your lives. You will see transformation in your life. जिन लोगों ने हमको जान से मारने की कोशिश की थी जादू टोने के समय, हम क्या सोचते थे, हम उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे. दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं कैसे माफ़ करूं, मेरा इतना नुकसान कर दिया, मेरे इतने 1-2 साल वेस्ट कर दिए, जो भी है ना. हम पढ़ते हैं ना, कई बारी हम सुनते हैं ना कि सलमान खान को गुस्सा आता है, वो माफ़ नहीं करता कभी. हम भी ऐसे सोचते थे कि हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे. बट जब हमने बाइबल पढ़नी शुरू की, जब हमने सतगुरु यीशु की वाणी पे ध्यान लगाया, तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रभु ने अंदर से कड़वाहट को ऐसे दूर किया कि अब हमें ख्याल भी नहीं आता, और अब उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनको भी रास्ता दिखाए. दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्राइस्ट. दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट गॉड इज़ लुकिंग फॉर. बट गॉड ऑल्सो सेज सिन नो मोर. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ये सामर्थ केवल यीशु मसीह के द्वारा आती है. हम अक्सर पढ़ते हैं ना कि आपको काम, लोभ, आपको पाप, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, दिस 5 वाइसेस, उन पे आपने जय पानी है. अब जय आप अपनी ह्यूमन एफर्ट में पाते हैं, कभी हो जाता है, नहीं होता, बट दैट कैन ओनली बी डन, मेरे एक्सपीरियंस मैंने देखा है, दैट कैन ओनली बी डन थ्रू क्राइस्ट. भी जो जगत का परमेश्वर, जिसने मेरे को मेरी माता के गर्भ में रचा, जो आकाश और पृथ्वी जिसने बनाया, पूरा ब्रह्मांड जिसने बनाया, जो कहता है कि मैं ही अल्फ़ा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही पाप माफ़ करने वाला परमेश्वर हूँ. जब वो परमेश्वर हमारे अंदर आता है, तो वही अथॉरिटी भी हमारे अंदर आ जाती है. स्क्रिप्चर्स में लिखा है ना. सो
कई बातें हमारी टेस्टिमनी की बीच में रह गई हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। एंड बट हाँ, बीच में मैं किसी को ऑफिस में एक बार मैं हाथ दिखाने भी गया था जब हमारे ऐसे काम नहीं बनते थे, और पता लगा था कि वो संजय दत्त का एस्ट्रोलॉजर है जमुना पार, है ना। संजय दत्त की जब इनिशियली अरेस्ट हुआ था तो उसने कोई उपाय बताया था, तो उसको बेल हो गई थी, संजय दत्त के बेटे को, सुनील दत्त के बेटे को बेल हो गई थी। सो कहने का मतलब है कि बहुत सारे पापड़ बेले बट, और बहुत सारे पैसे खर्च किए इन बाबाओं पे, डेरों पे, एंड टेम्परेरी रिलीफ आया, बट जो ओरिजिनल रिलीफ उससे भी ज़रूरी है एक, प्रभु ने हमको ये जवाब दे दिया कि मरने के बाद क्या होगा। जैसे ही आंखें इस संसार से बंद होंगी, आई विल बी इन द आर्म्स ऑफ क्राइस्ट फॉर एवर, फॉर इटर्निटी। देर इज़ नो सेकेंड बर्थ। कुछ नहीं कि हम कहाँ मिलेंगे, हम कौन से तत्वों में मिलेंगे। नो, अकॉर्डिंग टू बाइबल यू लिव ओनली वंस एंड देन द जजमेंट। इफ यू बिलीव इन क्राइस्ट, इफ यू लिव अ राइचियस लाइफ, देन यू गो टू हेवन और एल्स यू गो टू हेल। और हेल ऐसी ग्लोरीफाइड वाली जगह नहीं है जैसे दिखाते हैं मूवीज में। नो, देयर इज नो मीन ए फन इन हेल। इट्स अ प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, इटर्नल टॉर्मेंट, इतने हाई टेम्परेचर्स वेयर द वार्म नेवर डाइज। सो माई फ्रेंड्स, आई प्रे टू यू दैट जो कुछ आज आपने सुना है, आप इस पे मनन कीजिए। आपके मन में कोई सवाल है आप पूछिए। अगर आपके घर में कोई प्रार्थना, विनतियाँ, रिक्वेस्ट्स हैं, अगर आप अपने घर में छोटा सा सत्संग कराना चाहते हैं, नॉट लॉन्ग, मे बी 20 मिनट्स, 25-30 मिनट्स, वी आर अवेलेबल फॉर यू। एंड अगर आप चाहते हैं हम फ़ोन पे आपके लिए कोई प्रेयर्स करें, आपके घर की कोई भी सिचुएशन है, आपके बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, रिलेशनशिप को लेके, जॉब्स को, एनीथिंग, यू जस्ट सेंड मी अ मैसेज। एंड वी ऑल्सो हैव आवर यूट्यूब चैनल होप ऑफ इटर्नल लाइफ, वेयर वी कीप अपलोडिंग। हमारे बेटे को प्रभु ने गिफ्ट दिया है पियानो बजाने का, एंड ही प्लेज वर्शिप सॉन्ग्स ऑल्सो। रोज़ 9:30 बजे हमारी फैमिली मीटिंग होती है, कोई चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकता है। वी कैन प्रे फॉर यू। सो माई फ्रेंड्स, टुडे I would just like to bless you. May the peace of the Lord, may the grace of the Lord multiply on you, on your homes. And remember, you are not alone. God loves you. He has a wonderful plan for you. Goodbye and God bless.